Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Here, see, up to now you have gone through many exercises of this chapter. This is class 9, chapter number 13, that is surface area and volume. Clear? So, this is exercise 13.1. Before this, we have gone with exercise 13.1, exercise 13.2. So today we are going to start with exercise 13.3, which is related to the cone and its total surface area and curved surface area and everything. Yeah. So you must be aware about cone kya hai kya nahi hai. Everything has been discussed in introduction part. All the formulas have been discussed. Then too, first of all, I will let you know the formulas. That these are the formulas which we are going to use in this section. That is curved surface area pi rl, total surface area pi r in bracket r plus l, and slant height L equals to under root r square plus h square, and volume is 1 by 3 pi r square h. Volume ka discussion we will do on next exercise later on, that is exercise 13.7 right now. But just now we have to focus on these three formulas: pi rl, pi r in bracket r plus l, and L equals to under root r square plus h square. Clear? So main thing, see, as I am always telling, please like this video, comment on this video, share these videos and subscribe the channel. First and the foremost thing what you have to do is, आपको क्या करना है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो तो डाउट सेशन में आप कमेंट कर सकते हो, डाउट वो आपका जो भी डाउट है. एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, देन आल्सो कमेंट दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. ओके, लेट्स मूव ऑन अहेड. विल मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 1. Diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. आपको diameter दिया हुआ है, slant height दी हुई है, and you have to find out the curved surface area. Simple. Curved surface area, that is pi r l. So 22 upon 7. See, this is diameter. So 10.5 upon 2, because radius is diameter by 2, and L, that is 10. So 7, 1.5, 2, 11 so 11 into 15, that is equals to 165 centimeter square. So curved surface area of the cone would be 165 centimeter square. We can go with this. Radius of the cone, that is pi by 2, that is 10.5 by 2, that is 5.25 centimeter. आप डिवाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा, और अगर डिवाइड कर देते हो then too it's okay, no issues at all. Then slant height, it is already given, L equals to 10 centimeter. Curved surface area CSA of cone is pi rl, that is equals to 22 by 7 into 5.25 into 10, so 165 centimeter square. Therefore the curved surface area of the cone is 165 centimeter square. See, calculation I have already done, but आपको calculation करना है. Calculation करना ना भूले. देखो, main thing is calculation. Easy होता है. जैसे कभी कभी कोई काम है, जैसे 11 into 15 दिया, तो what you have to do is just write 15 here and 15 here and add it, 165 centimeter square. So that is how. Quick tricks are also there, easy tricks, उसको भी use कीजिए, कोशिश कीजिए, तो आपको helpful रहेगी. Then find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter, L is given, and diameter of the base is 24 meter. Total surface area. So first of all, total surface area, radius equals to 12 meter, slant height L equals to 20 meter, and total surface area का फॉर्मूला क्या है, pi r in bracket r plus l, pi r in bracket r plus l, that is equals to 22 by 7 into 12, radius is 12 meter, and L, that is 21 plus 12, so 22 by 7 upon into 12 into 33, so that will be equals to, आप सबको मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो you will get, suppose 22 into 33, so 6 6 6 6, so 6 to 726, then 726 into 12. See, calculation already किया हुआ है, but आपको करना है 6 to 7 12 4 5 and 14, so you will get 217,871 upon 7, so that is equals to total surface area, that is 1244.57, 1244.57 meters square. Clear? So therefore total surface area of the cone which is given is 1244.57 meters square. Next, curved surface area of the cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Slant height आपको दी हुई है 14 centimeter. And find radius of the base and total surface area of the cone. Find
रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको रेडियस फाइंड करना है बेस का और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व सरफेस एरिया जैसे जो भी डिटेल दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैंट हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, और दिया हुआ कितना है 308। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन, you should write here given also, और नहीं लिखते हो तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। तो 308 इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर, तो आर क्या हो जाएगा 308, ये 7 डिनोमिनेटर में है तो इट वुड बी इन मल्टीप्लिकेशन, 22 इन डिनोमिनेटर एंड 14, तो 7 2 जा 14, 2 154, 11 2 जा 11, 14 जा, so radius equals to 14/2 that is equals to 7 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस जो फाइंड करना था तो रेडियस आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, so radius of the base of the cone is 7 centimeter. Now total surface area that is equals to curved surface area of cone plus area of base। देखो कोन जो होता है ना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला, जैसे ये वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज द बेस ऑफ द सर्कल, बस ये सर्कल को ऐड कर दो, दैट इज पाई आर स्क्वायर। If you are adding this one you will get total surface area. So curved surface area that is 308 already given, plus pi upon 7 into 7 square, so 22/7 into radius square, r square means 7 का square, 7 into 7 1 7 cancel, 22 7 are 154, so 308 plus 154 यानी हो जाता है आपका, therefore total surface area of the cone is 462 centimeter square. How much? 462 centimeter square. Clear? Next, a conical tent is 10 meter high and the radius of the base is 24 meter. Find the slant height of the tent. Cost of the canvas required to make the tent. If the cost is 1 meter square, canvas is ₹70. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, आता होगा ना, नहीं आता, याद करो यार, कोशिश करो। स्लैंट हाइट, चलो फॉर्मूला नहीं आता, सपोज स्लैंट हाइट का फॉर्मूला नहीं आता है, हम देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, दिस इज एच और ये आर है और ये एल है, पाइथागोरस थ्योरम तो आता होगा, ये ट्राइंगल समझ लो, दिस इज ट्राइंगल एओबी। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम दैट इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो गया हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। जस्ट वैल्यू पुट करो, h that is 10 whole square plus r that is 12 whole square that is equals to 100 plus 144, clear? सॉरी 24 है ना, 12 24 है, मैंने थोड़ा 24 that is 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, that is equals to root 676 and equals to 676 यानी 26, तो L कितनी हो गई 26 मीटर। स्लैंट हाइट आपका क्या है 26 मीटर, चलो देख लेते हैं वापस। H equals to 10 meter, radius equals to 24 meter. In triangle AOB we have AB square equals to Pythagoras theorem use करो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, so you will get L square equals to 676, so L equals to 26 meter. आपको ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर ले तो वेल एंड गुड, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला इज नीडेड, मेन फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आया तो आपको मिल जाए। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस, कभी भी टेंट में बेस नहीं होता, कोई कोई रखता हो तो बात अलग है, बट अगर टेंट बना रहे हैं तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरे सर्कुलर एंड में होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट यानी कैनवास जो रिक्वायर्ड है दैट इज 22/7, पाई आर एल मींस 22/7 into 24 into 26 that is equals to 13,728/7। कैलकुलेशन बार बार मुझे बोलना पड़ता है बट बोर मत हो जाना, लेकिन कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके रखी हुई, बट आप लोग को प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन करके, ताकि स्पीड में कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको ही कैलकुलेट करना है, सो मेक श्योर। क्लियर? नाउ व्हाट वी आर सेड कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इफ ₹70, तो डायरेक्टली कॉस्ट फाइंड करना, ये तो एरिया मिल गया, सो कॉस्ट देखो अगर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹70, तो 13,728/7 इक्वल्स टू कितना, तो 13,728/7 into 70, तो 7 10s are, so cost will be 137280 means 1,37,280. So देखो यहाँ पे it is equals to rupees cost of 1,300 means 13,728/7 meter square canvas is equals to 1,37,280 rupees. Clear? समझ में आ रहा है? Clear है everything?
एनी डाउट, एनी रिगार्डिंग, तो कमेंट कर दीजिए क्विक। क्लियर? कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे कमेंट कर देना, मेन चीज वही है, कमेंट करोगे तो बेटर है, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter wide? हाइट दिया हुआ है, बेस रेडियस 6 मीटर। टारपोलिन, देखो अभी इन्होंने क्या बोला है वो चीज समझना। एक टारपोलिन है, टारपोलिन मतलब जो होता है प्लास्टिक का, वो ब्लू कलर के प्लास्टिक्स आपने देखे होंगे जो रेनी सीजन में बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि कोई गाड़ी पे कवर कर रहा है, कोई व्हीकल्स पे कवर कर रहा है, कोई कहीं पे कवर कर रहा है, सो दैट इज टारपोलिन। सो दे हैव सेड दैट टारपोलिन की विड्थ दी हुई है, टारपोलिन की उन्होंने विड्थ दी हुई, दैट इज 3 मीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। व्हाट लेंथ मतलब आपकी लेंथ क्या होगी टारपोलिन की? conical tent of height 8 meter and the base radius 6 meter. Assume extra length of the material that will be required for stitching and waist margin is approximately 20 centimeter. इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, मैं 0.2 मीटर। ठीक है, इतना वेस्टेज है भाई, ऑब्वियस सी बात है, कभी भी हम लोग कुछ भी करवाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, कॉनिकल हाइट बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टिचिंग मार्जिन चला जाता है, तो दैट इज 0.2 मीटर गिवन है, तो वो हम लोग ले लेंगे। सो आपको 0.2 मीटर लास्ट में जो ये लेंथ है, या जो भी कर्व सरफेस एरिया से हमको लेंथ मिलेगी, उसके अंदर आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? कॉनिकल टेंट। ठीक है, कॉनिकल टेंट हम लोग बना रहे हैं। सो कॉनिकल टेंट की हाइट दी हुई है उन्होंने 8 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर। सो पहले तो सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, तो ही आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। एंड दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द टारपोलिन विदाउट मार्जिन। अभी मार्जिन के बिना, फिर मार्जिन अब ऐड कर दोगे तो एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, सो विल गो विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट 8 मीटर, रेडियस मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, हाइट 8 मीटर, रेडियस 6 मीटर। स्लैंट हाइट दैट इज L square equals to under root means L square equals to R square plus H square. L square equals to, देखो आपका मैं यहाँ पे बना दूं थोड़ा सा, तो आइडिया है टारपोलिन 3 मीटर, लेंथ आपको फाइंड करनी है, एंड इट इज कॉनिकल टेंट, so this is 8 meter, this is 6 meter, so this is what, so using slant height formula, L square equals to 6 square, 6 square means 36 plus 8 square, that is 64, that is 100, so L equals to 10 meter. So now कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मिल गया, सॉरी लेंथ मिल गई, स्लैंट हाइट मिल गई। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इज पाई आर एल, दैट इज 3.14 into 6। आर क्या, रेडियस 6 मीटर और एल बना 10, सो 31.4 into 6 दैट इज इक्वल्स टू 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आपको मिला क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। आप चाहो तो डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। यही एरिया, let the length of the tarpaulin sheet required be L, 20 centimeter will be wasted, therefore effective length is L minus 0.2 meter. So breadth of the tarpaulin equals to 3 meter, so area of the sheet equals to curved surface area of tent, so L minus 0.3 into 3 equals to 188.4. so इसको 188.4 को 3 से डिवाइड किया तो 62.8, 62.8 equals to L, तो हमारा L क्या मिलेगा, L equals to 63, क्योंकि 0.2 इस तरफ जाएगा तो 63, so L equals to, therefore the length of the required tarpaulin sheet will be 63 मीटर। जो टारपोलिन हमें चाहिए उसकी लेंथ क्या होगी, 63 मीटर। एक और शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, एक और मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेंथ था 3 मीटर, इसका वेस्टेज में छोड़ रहा हूं अभी, राइट नाउ मैं छोटा ले, ओरिजिनल लेंथ L है, अभी ये सिर्फ L जो वेस्टेज के बिना है, ये जो 20 सेंटीमीटर उसके बिना, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया उसका होगा। सो L into B इक्वल्स टू पाई आर एल बोल सकता हूं, ये L अलग है, ठीक है, ये L1 ले लेता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। L1 ये स्लेंट हाइट है इसकी। सो L into 3 equals to 3.14 into R यानी 6 into L यानी 10, so L equals to 3.14 into 2 into 10, क्योंकि ये 3 जाएगा तो 3 2 6, so आपको ये L मिली, that is 62.8। अब इसमें हमारा वेस्टेज कितना हुआ था, 0.2, तो डायरेक्टली 62.8 प्लस 0.2 अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको ओरिजिनल कैपिटल L मिल जाएगा, that is L equals to 63 मीटर। तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, इफ यू विश यू कैन गो विद दिस मेथड आल्सो, बोथ मेथड आर करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. आपको
जो भी ये हमारा जो कोन है, कॉनिकल टॉम है, उसको व्हाइट वॉश करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही व्हाइट वॉश होता है। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सब डिटेल्स क्या दी हुई है, हाइट इक्वल्स टू 21.5 मीटर, h स्लैंट हाइट दी हुई ना, स्लैंट हाइट l इक्वल्स टू 25 मीटर एंड बेस रेडियस दैट इज डायमीटर अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 यानी 7 मीटर। So curved surface area of Tom is pi RL, that is 22 by 7 into 7, तो 7 7 cancel, ठीक है, 22 into 25 that is 550 meter square. Therefore curved surface area of conical Tom is 550 meter square. चलो ये हमको क्या मिला, कर्व्ड सरफेस एरिया मिला। नाउ कॉस्ट, कॉस्ट क्या बोला हुआ है, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी अगर 100 मीटर स्क्वायर का प्राइस 210 है तो 550 मीटर स्क्वायर का कितना, दैट इज इक्वल टू 210 इंटू 550 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 21 इंटू 55, सो आपका आंसर आ जाएगा 510 दैट इज इक्वल टू 1155। ये आपका आंसर देखो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो ₹11555 यानी therefore cost will be ₹1155 while white washing the tom, tom को white wash करने का प्राइस कितना होगा। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ ओके है। कहीं पे भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, भूलना नहीं, अरे बेझिझक कर देना, हम लोग सॉल्व करेंगे ना, चिंता क्यों करते हो। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका है जिसको सॉल्व करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका कोशिश करेंगे वीडियो के रूप में आपको आंसर्स दे दें या फिर डायरेक्टली दे दें, एज यू विश, बट कमेंट करना ना भूल, मेन चीज यही है, कमेंट करते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, A joker's cape is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। भाई एक जोकर की कैप है, टोपी बना देना है, कोन, ठीक है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर रेडियस, हाँ, एंड हाइट इज गिवन 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच केप, आपको एरिया फाइंड करना है 10 ऐसी केप बनाने के लिए। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई केप तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेस तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि टोपी सिर में पहननी है, ऊपर रखनी थोड़ी ना है, सो दैट्स व्हाई, so radius of the conical that is 7 centimeter and height is 24 centimeter, so slant height L square equals to h square r square plus h square, तो 7 square plus 24 square equals to 49 plus 576, so L square equals to 625। क्योंकि हाइट दी हुई थी तो हमको रेडियस फाइंड मतलब स्लैंट हाइट फाइंड करना जरूरी था, तो L इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब L मिल गया तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल, सो 22 अपन देखो 7 से 7 का तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसी कितनी कैप्स चाहिए, 10 सच कैप्स, सो कॉस्ट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप दैट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर कैप का मींस देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स इज इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्राइस नहीं पूछी है, शीट का एरिया पूछा है, भूल से रुपीस, इतने सारे सम्स करते ना तो रुपीस हो गया। सो द एरिया शीट जितनी रिक्वायर्ड है या कार्डबोर्ड जितना रिक्वायर्ड है वो केप बनाने के लिए दैट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, this would be the last question, I hope so, this for exercise। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road। बैरिकेडेड मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी रोड का वर्क चलता है तो ऐसे रेड कलर के कोन्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, रोड पे इस तरह से बहुत सारे कोन्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, रेड कलर के, ये ताकि भाई वर्क अंडर प्रोग्रेस लिख के, तो वही चीज है। बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, ऐसे 50 होलो कोन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्बन, ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, बट डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हो जाएगा डिवाइड बाय 2 यानी 20 सेंटीमीटर। हाइट इज 1 मीटर, भाई हाइट 1 मीटर में दिए तो इनको भी अपने मीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाद में, देखते हैं, दैट इज 0.2 मीटर और ये 0.4 मीटर डायमीटर, ठीक है। इफ आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, भाई प्राइस दी हुई है कि 1 मीटर स्क्वायर को 12 रुपीज पे पेंट होगा। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल दीज कोन, कितने कोन्स बनाने हैं, 50 कोन्स, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और टेक रूट 1.04 इक्वल्स टू 1.02, रूट 1.04 अगर है तो उसको रूट 1.02 उसकी वैल्यू लेनी, इट इज गिवन। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ वैल्यूज हम लोग फाइंड नहीं कर सकते ना, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होती है, सो यूज दैट वैल्यूज। सो देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, रेडियस दिया हुआ है आपको 0.2 मीटर, ठीक है, हाइट 1 मीटर, स्लैंट हाइट इक्वल्स टू L स्क्वायर इक्वल्स टू
इन ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, सो l स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी इक्वल्स टू 1.04, सो l इक्वल्स टू 1.02 मीटर, क्योंकि देखो 0 रूट मुझे क्या मिला, मुझे l स्क्वायर इक्वल्स टू 1.04 मिला, तो l इक्वल्स टू रूट 1.04 और रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 ऑलरेडी दी हुई थी, मैंने नहीं यूज किया, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो 1.02 मीटर मिल गया हमको लेंथ। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, सो 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, इनका मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखो डेसिमल्स जब होते हैं ना, तो डेसिमल्स में मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा। सो यू विल गेट आंसर 0.64056, क्योंकि 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस के बाद था, सो वी विल गेट 0.64056 मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट वाज गिवन, कॉस्ट ऑफ 50 सर, अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमको कितने 50 कॉन्स का करना है, तो 50 इंटू 0 दैट इज 32.028 मीटर स्क्वायर। ये हमको दिया हुआ है कि 50 कैप बनाने हैं, तो 50 कैप में इतनी शीट यूज होगी। अब इसका कॉस्ट फाइंड करना क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 12 रुपीज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.0828 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 32.028 इंटू 12। मल्टीप्लीकेशन आपको ध्यान से करना है, यू विल गेट रुपीज 384.336, सो 34 लिख सकते हो आप पॉइंट के बाद, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस कोन इज रुपीज 384.34, अप्रोक्सीमेटली हम लोग कर देते हैं, तो 34, भाई आजकल 34 पैसा तो कुछ होता नहीं, वो लोग पूरे 385 ले लेंगे, लेकिन हमें जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 0.34 आ रहा है तो हम लोग रखते हैं, बाकी सामने वाला या तो 1 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेगा क्योंकि वो बोलेगा सर राउंड ऑफ कर दें, या फिर आपके वो पॉइंट छोड़ देगा, लेकिन दोनों ही चांसेस है, भाई छोड़ता तो कोई है नहीं, ले ही लेते हैं। So thank you very much. This was the last question of the exercise. I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, कहीं पे भी लैग हो रहा है, पीछे जाइए, रिवर्स कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है, just comment in the comment box. I will try to explain or give you the video explanation. Clear? So thank you very much. Share this video with everyone. Sharing is caring. Like, comment और share और subscribe करना ना भूले, आप लोग का इतना काम तो है ही है। Clear? So thank you very much. Bye bye. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। Bye bye everyone. Thank you.